देवाला मागतो. आमेन. यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया. The angel of the Lord encamped round about them that fear him and delivered them. परख कर देखो कि यहोवा कैसा अच्छा है. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है. O fear the Lord, his saints, for there is no want to them that fear him. जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी न होगी. Come ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे. Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking ill. The eyes of the Lord unto the righteous, and his ears are open unto thy cry. यहोवा बुराई करने वालों के सम्मुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा है. The righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे मुंह का उद्धार करता है. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them him out of them all. वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Together we will say, the यहोवा अपने दासी का प्राण मौत की तरफ बचा लेता है और जिनके उसकी शताब्दी है उनमें से कोई भी दोषी न रहे. तो भी समान है. हम गौर करते कि दाऊद संपूर्ण प्रजा को, संपूर्ण सभा को आमंत्रित करता है कि यहोवा द्वारा उसे किस प्रकार छुड़ाया गया है और उसके लोगों के प्रति यहोवा की भलाई किस प्रकार है. और इसलिए पहले 10 पदों में कहता है कि इसलिए उस परमेश्वर खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है. आगे 11 से 22 पद में हम देखते हैं फिर दीर्घायु होने के लिए धार्मिकता के मार्ग के विषय में लोगों को शिक्षा देता है कि दीर्घायु और अच्छा श्वास और तमाम आशीष का जिक्र वो करते हुए 11 से लेकर 22 पद में उस प्रकार का जिक्र किया है. परमेश्वर खुदावन को हम शुक्रगुजारी करते हैं और इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं और मध्यस्थी की दुआ पर हम इस समय अपने कुछ प्रार्थना विनती खुदा के चरणों में रखते हैं. हम जानते हैं कि पिछले दफा महाराष्ट्र में जिस प्रकार परिस्थिति है क्रिश्चियन लोगों के लिए, सिस्टर एमा आगे दुआ करेंगे. Pray for the
entire world and peace. Especially pray for situation, especially Iran and Israel. Also pray for India, the government, president, vice president, PM, and all the ministers, especially chief minister of every state in India. Continue to pray for the various denominations which are working in India in different parts of India, especially through religious activities, social activity, educational activities, or even medical activities, so that God will help them to keep their vision firm, and there won't be any. There are a number of problems in India, especially one of the MLA last Sunday I have mentioned about Mr. Padalkar from Sangli. He made a statement, a hate speech regarding Christian community, especially those who beat or kill any priest from Christian community, and he will reward them some 11 lakhs rupees. So that is the very crucial situation in Maharashtra, even in other parts of India. Yesterday, one of the BJP MLA in the Assembly of Maharashtra, he gave a bill so that anti-conversion, the forceful anti-conversion will stop in Maharashtra. Absolutely no Christians do forcefully or with any temptation, because in the scripture also, Bible or even Jesus also never speak about conversion, but willingness is very important. So that is also against Bible, but they want to make such law or implement in Maharashtra, which is already there are few states in India like Rajasthan, then maybe Madhya Pradesh and Uttarakhand, UP North. So they are trying to bring this bill in Maharashtra. So let's pray. Even on the 11th of this month, July, there is a Andolan, or there is a big rally at Azad Maidan, almost from all over Maharashtra, different denominations. They are gathering together to protest against the hate speech by Gopichand Paradkar. So remember this situation, especially the situation against Christianity. Definitely the Christ will be coming soon. That is what the scripture says. Even Jesus assured that this hate speech or the people will go against me and you will face the persecution. And these are the signs and the wonders that Christ will be returning soon for His second coming. So let's pray for the Christian, all the Christian in India, so that we will be prepared to meet the Lord, because Lord will come anytime. So let's remember this prayer point. Also, please pray for Sister Seema Lakra, who is already hospitalized. I mentioned in the group. Yesterday I met her. She is suffering with some pneumonia. Some treatment is going on. So pray for her. Continue to remember her sister-in-law, Sister Kala, for her treatment. And also today I got message from one of our church brothers, Mr. Vinod Thora, who lives in Ambarnath. Pray for, he is not keeping well, so he requests us to please remember in prayer. Vinod Thora. So I think there are a number of people, because of weather or water, we are suffering with various problem and all. So Jehovah Rapha is with us. So remember all our church members, so that we will have a good health, and during this difficult time, God will lead us. Also continue to remember for this entire month, we will have some other activities through church, or maybe our personal or family, some important work. So may God will lead us. So remember even those activities in your prayers. As Sister Emma Kujur will comfort and she will meditate, especially interest in this prayer, I request all of us to remember
remember all these prayer points in your mind, let's also continue to pray and submit all these prayer requests over Lord Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you for giving us this precious time to be able to come here to praise your name, Lord. Thank you for your protection throughout the week, so that, Lord, we are able to come here to have a fellowship with each other, to have fellowship with you, Lord. We thank you for everything you have done in our life. We thank you for your protection. We thank you for everything you have done in our life, Lord. This morning, I would like to pray for our church community, every one of us, Lord. I just wanted to commit each and every one of us in your hand, Lord. May you be with us. May you speak to us afresh this morning, so that, Lord, we may grow more and more in you, and we may have a good relationship with you more and more, Lord. I would like to pray for each and every one of us, those who are sitting here, Lord. I pray for our health. I just wanted to commit our health into your mighty hand, and may you strengthen us afresh, so that, Lord, we may be able to carry on our life, we may be able to carry on the works that you have entrusted us to do. I also like to pray for our financial situation, Lord. We may face some difficulties and problems in our life, maybe financially, maybe mentally, maybe physically, maybe mentally also, Lord. I just wanted to commit each and every one of us in your mighty hand, that may you provide us whatever we need every day, every moment, and every second, Lord. Be with us always and strengthen us afresh. Yeah.
प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेस ज्यादा, प्रभु तेरा दिल
अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा आनंद जीवन, आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा आनंद जीवन, मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 सकाळची सुंदरची वेळ दाखवली आणि पर्यंत आम्हाला सर्वांना एकत्र तुझ्या आराधना स्तुती करण्यासाठी शांतीचा राजकुमार आहे पप्पा. आम्हाला सर्वांना शांती देणार पप्पा. अशी मी आपल्या करते आज जे काय स्तुती गान केलं ते तुला घरांमध्ये व्हावं पप्पा. आणि आम्ही आज कीर्तनामध्ये आहोत तसे जाताना सेम राहणार नाही तर तुझे आशीर्वाद तुझं सर्व काही शांती सुशांती घेऊन आम्ही घरी जाऊ ही तुझ्याकडे प्रार्थना करते बाप्पा. आज जे काय येणारं वचन आहे ते आम्हाला ग्रहण करण्याची शक्ती सामर्थ्य दे बाप्पा. तुझ्या पवित्र आत्म्याने आमच्या आयुष्यामध्ये पवित्र आत्म्याचा आशीर्वाद आम्हाला दे बाप्पा. तसेच जे काही जे लोक अजून येण्याच्या मार्गावर आहेत त्यांचा मार्ग रिकामा कर बाप्पा. आणि तुम्ही तुमची आराधना त्यांनी करावं कोणासाठी मागण्यात राहिल्या मी मागून बाप्पा. आणि माझ्या जे काही मागील आठवड्यामध्ये किंवा मागील काळामध्ये जुने अपराध झालेले आहेत त्याची मी मागून मागतो बाप्पा. आणि पुढील सर्व वेळ तुझ्या पुढील सर्व वेळ तुझ्या हाती देते. तुझ्या बोल आणि पवित्र नावाने मागते म्हणून करेल. वचन इसका 10वां अध्याय 1 से 15 तक। सुलेमान की नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। जो काम ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण हो जाता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन करता है वह उसी से और को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह का जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छाप लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। समझने वालों को वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए घोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है।
जस्ट इमेजिन कीजिए a road with two signs, एक रास्ता जो दो दिशा दर्शाता है. One says life and blessing and other say destruction and shame, है ना, destruction and shame. दो प्रकार के रास्ते जब इस प्रकार की परिस्थिति, और यह नीति वचन या प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 हमें उस राह पर खड़ा करता है, और दो प्रकार के रास्ते हमारे जीवन में हमें आगे दिखते हैं. तो यहाँ पे हम आज इस पर विशेष गौर करते हैं, और आज का जिस प्रकार शीर्षक हम देखते हैं यहाँ पे, द पाथ ऑफ राइचियसनेस, धर्मी का मार्ग वर्सेस द वे ऑफ विकेड, या हम गौर करते हैं द पाथ ऑफ विकेड, या रास्ता या मार्ग जो दुष्टों का रास्ता है, दुष्टों का मार्ग. तो यहाँ पे हम जिस प्रकार गौर कर रहे हैं, नीति वचन इस 10वां का 9वां वचन काफी मायने रखता है. जिस प्रकार वो कहते हैं कि जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है. यहाँ पे संक्षिप्त रूप में हम 4 बातों की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित करेंगे, और 10 में है. और हम आपने अगर गौर किया होगा, सिंस एज वी हैव बिगन चैप्टर 1 till 9, हर इसमें इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है. ज्ञान बुद्धि हो, सही रास्ता हो, ये तमाम बातों का यहाँ पे जिक्र है. तो पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि राइचियसनेस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी. पहली बात को हम गौर करते हैं कि धार्मिक जीवन हमारे लिए स्थिरता लाता है. We read 1 and 2, पहले 2 पद में लिखा है कि सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है. और दूसरा पद, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है. यहाँ पे हम गौर करते हैं जिस प्रकार की अन्याय का जिक्र जिस प्रकार लिखा है, और अन्याय की कमाई कुछ लाभ नहीं देती, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है. बिब्लिकल माध्यम से यह स्क्रिप्चर, यहाँ सोलोमन राजा अपने पुत्र और तमाम प्रजा और हम हर एक उस बात को कहता है कि गॉड वैल्यूज राइचियसनेस, परमेश्वर धार्मिकता को गौर करता है और देखता है. अर्थली वेल्थ या जगी की जो संपत्ति है, इट इज जस्ट टेम्पररी. संसार की जो संपत्ति और संसार का मान सम्मान, ये तमाम बातें हैं, वो बिना नाशकारी है, वो हमारे जीवन में अनंत काल तक नहीं रहेंगे. बट राइचियसनेस इज एटर्नल. धार्मिक जीवन या धर्मी जीवन जो परमेश्वर की नजर में है, और सोलोमन राजा अपने पुत्र और तमाम जनता को उस प्रकार की बात कह रहा है. और हम बात करते हैं, अगर उत्पत्ति की किताब में यूसुफ का जिक्र किया है, we see a life of Joseph. Joseph, when he was in Egypt, he chose righteousness and refused पोटीफर्स वाइफ, है ना. जिस प्रकार उसके जीवन में पोटीफर या उसके जो पत्नी थी और उसके बारे में जो परिस्थिति उसके जीवन में आई, बट he has 2 decisions, 2 ways what to choose. कौन सी बातों को अपने जीवन में लेना है और किसको नहीं लेना है. हम गौर करते कि he choose righteousness, धार्मिकता को उसने अपनाया. he suffered temporarily, है ना. temporarily he suffered, he did not suffer for longer. हम गौर करते हैं कि उस बात के वजह से कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल वो तकलीफ और मुश्किलों में आया, but was later he was honored as a head of the मिस्र देश, है ना. वहां पे इजिप्ट में वो एक बहुत ही सम्मानजनक, एक आधिकारिक रूप से उसको रखा गया है, because he chose the right path. अपने जीवन में उसने सही बात को चुना. और इसलिए हम गौर करते हैं कि दूसरा पद यहाँ पे कह रहा है, धार्मिकता से स्थिरता आती है हमारे जीवन में. लिविंग अ राइचियस लाइफ गिव्स अ स्टेबल लाइफ, स्टेबल, जो हमारे जीवन में हम स्थिर रह सकते हैं. सो चूज राइचियसनेस इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग. जब हमें कोई नहीं देखता हो और हमारे जीवन में हम अकेले हैं, जिंदगी के राह पर हो या जहां हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं देखता, ऐसे समय में भी
हम किसको चूज करते हैं, किसको चुनते हैं, वो मायने रखता है। बिकॉज गॉड सीज एंड विल रिवार्ड ईच वन ऑफ अस जो इंटीग्रिटी परमेश्वर में रहते हैं, जो परमेश्वर खुदावन, क्योंकि कोई देखना नहीं देखना मायने रखता है, लेकिन गॉड ऑलवेज वॉचेज ओवर अस। परमेश्वर हर पल हमें देखता है। 11वां पद अगर पढ़ते हैं, जस्ट रीड 11 वर्स, समवन कैन रीड वर्स 11। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छाप लेता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। नाउ द माउथ ऑफ द राइचियस इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ, बट द माउथ ऑफ विकेड काउंसिल वायलेंस। हम गौर करते हैं यहां पे, द टंग रिवील्स द हार्ट। हमारा जो जबान है वो हमारे हृदय को, मन को बताती है। सो जीभ जो है हमारा, वो मन की स्थिति को प्रकट करती कि हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, ये तमाम बातों का जिक्र करती है। और इसलिए नीति वचन 10 का 11वां पद सोलोमन राजा अपने पुत्र और तमाम लोगों को कहता है, और उसका अर्थ वो कहता है कि स्पीच रिफ्लेक्ट्स वंस इनर स्पिरिचुअल कंडीशन। अपनी जबान से निकलने वाला शब्द और सोच हमारे मन के विचारों को प्रकट करता है। वर्ड्स कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय, है ना। अपने निकलने वाले मुख से जो शब्द है, एक तो वो बना सकते हैं बहुत कुछ, या कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। हाउ वी स्पीक, हम किस प्रकार बात करते हैं, इस बात करना नजरिया है। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द हमारे हृदय को, हमारे मन को बताता है कि हमारी सोच, हमारे विचार किस प्रकार है। इफ वी रीड लुक चैप्टर 6 वर्स 5, जीसस व्हाट ही सेड, जीसस यीशु मसीह क्या कहता है। गॉस्पेल ऑफ लुक चैप्टर 6 वर्स 45, वहां पे लिखता है कि आउट ऑफ द ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट ऑफ द माउथ स्पीक्स गॉड। गुड ट्री bears good fruit, likewise a righteous heart speaks life। और यीशु मसीह उस पेड़ के बारे में कहता है उदाहरण तौर पर कि एक अच्छा पेड़ है, वो अच्छा फल देता है। एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, लेकिन हम गौर करते हैं कि उसी तरह ही कंपेयर दैट गुड फ्रूट एंड गुड ट्रीज, उसके बारे में, और राइचियस हार्ट स्पीक्स अबाउट लाइफ। एक धर्मी हृदय जीवन के बारे में बताता है या बात करता है, ना कि अधोलोक के बारे में। और इसलिए हम गौर करते कि अपनी जबान, अपने मुख से निकलने वाली शब्द, जो जीभ या हमारा मुख हमारे मन की स्थिति को प्रकट करता है कि हमारे मन और अंतःकरण और हृदय में क्या विचरता है। टंग्स रिवील द हार्ट। और तीसरी बात हम आगे देखते हैं, लेकिन आगे जाने से हम अपने शब्दों को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। हाउ वी एनकरेज वन अनदर। इफिशियंस में लिखा स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, है ना, इफिशियंस 4 में। और जिस प्रकार पर पौलुस उस कलीसिया को भी कहता है, अवॉइड गॉसिपिंग एटसेट्रा। हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हम जिस प्रकार घर में है, कलीसिया में है, काम पे है, समाज में है, जहां कहा है, हम अपने जबान का, अपने मुख का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। तीसरी थिंग्स, वर्स 4, चौथा वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखे जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजू लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नाउ दिस वर्स टॉक्स अबाउट लेजीनेस लीड्स टू पॉवर्टी, है ना। आलस्य मनुष्य को दरिद्री की ओर ले जाता है, एंड द डिलिजेंस लीड्स टू ब्लेसिंग। परिश्रम या मेहनत हमें आशीष की ओर ले जाता है, बरकत की ओर ले जाता है। और इसलिए वर्ष 4 में सोलोमन राजा उस बात को भी बता रहा है। हर इसमें 2-2 रास्ते का जिक्र है। पहले इसमें भी हमने 2 रास्ते के, दूसरे और तीसरी जो बात है यहाँ पे भी, लेजीनेस एंड डिलिजेंस, आलस्य और परिश्रम, हम किसको अपनाते हैं। गॉड ऑनर्स हार्ड वर्क। परमेश्वर खुदावन सम्मान करता है परिश्रम का।
Laziness is not just a habit, but it is a spiritual issue. That is what in the God's perspective. परमेश्वर के नजर में आलस्य हमारा आध्यात्मिक जीवन को भी बताता है ना? आध्यात्मिक जीवन ना सिर्फ अपने काम या परिश्रम के बाद, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जिस प्रकार आलसी व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता है, प्रार्थना नहीं कर सकता है, सुबह नहीं उठ सकता है, परमेश्वर की बातों को जो आज्ञाएं दी है उसको नहीं मान सकता है, ये तमाम बातें उस आलसी व्यक्ति के बारे में सोलोमन राजा कह रहा है। और से यहाँ पे यही सोलोमन राजा, पिछले दफा हमने 6वें अध्याय में गौर किया था अबाउट एंड्स, है ना? एंड्स के बारे में हम देखते हैं कि उसके बारे में जिस प्रकार जिक्र किया था 6वें अध्याय 6 से लेकर 8 पदों में, एंड इवन पौलुस इन थेसलोनिकी कलीसिया को कहता है, इफ अ मैन विल नॉट वर्क ही शैल नॉट ईट। इट्स कंपेयर विद लेजीनेस वर्सेस डिलिजेंस, हमारा परिश्रम और हमारी सोच को। सो बी फेथफुल इन आवर वर्क। हम जहां कार्य करते हैं, काम पे, घर पे, समाज में, कलीसिया में, जहां हम काम कर रहे हैं, हम विश्वास योग्य जीवन से कार्य करने की जरूरत है। एंड देयरफॉर वंस वी आर फेथफुल इन व्हाटएवर वी डू, गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस अस। परमेश्वर हमें आशीषित करता है। एंड द फोर्थ थिंग्स वी सी, वर्स 29 समवन कैन रीड, 29वां वचन, 29वां वचन 29। And unto him that smitten thee on the one cheek, offer also the other, and him that takes away the cloak, forbid not to take the coat, thy coat also. यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहराता है, परंतु अनर्थकारियों का वो विनाश होता है या विनाश करता है। So God watches over the righteous. खुदावंत परमेश्वर धर्मियों को और उसको रक्षा करता है, वॉचेस ओवर। इसलिए हम गौर करते हैं कि इवन साम्स 121 में भी उस बात का जिक्र किया गया है, द राइचस वॉक अंडर गॉड्स प्रोटेक्शन। जो धर्मी है, जो परमेश्वर के नजर में खुदा के छत्रछाया और उसकी अगुवाई में वो चलते हैं। बट द विकेड वॉक टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। जो अनर्थकारी है, या हम देखते कि कुकर्मी, अधार्मिक लोग परमेश्वर से दूर नाश की ओर जाना, इस बात को जिक्र करते हैं। डैनियल, वी नो वेरी वेल डैनियल, उसकी जो कहानी देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसे बाबिलोन शहर में रखा और वहां का राजा के द्वारा जो फरमान है, उसने अपने धर्मी जीवन को कभी न छोड़ा। He never lived his righteous life. Regarding prayer, regarding eating habit, regarding worship, तमाम बातों को अगर हम गौर करते हैं कि दानियल ने अपने जीवन में जो परमेश्वर ने कहा उसी आज्ञाओं में वो चला। डैनियल इन लायंस डेन अगर हम गौर करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर शेर, भूखे शेर के पास रखा जाए, वहां बाहर आने का कोई रास्ता नहीं, पॉसिबल नहीं आना, है ना? बट वी सी दैट बिकॉज ऑफ Daniel's integrity and trust in God, he was protected in Daniel chapter 6, जो पूर्ण कहानी वहां जिक्र किया गया है। इंटीग्रिटी, परमेश्वर के प्रति उसकी विश्वास योग्यता, समर्पितता, ये तमाम बात और उसकी धार्मिकता हर एक परिस्थिति में, क्योंकि दानियल और उस समय की परिस्थिति और वहां के तमाम लोग जो थे, वहां परिस्थिति बिगड़। आज भारत देश में उसी प्रकार की परिस्थिति हो रही है। हाउ वी आर गोइंग टू लिव, क्या हम धर्मी जीवन जीना चाहेंगे या परमेश्वर के विपरीत का जीवन? हमारे मित्र, हमारे सगे परिवार और कई लोग हमें प्रोत्साहन करेंगे, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, है ना? अनबिब्लिकल का बात कर रहा हूं। लेकिन हम परमेश्वर की बातें सुनेंगे या किसकी सुनेंगे? रिमेन ब्लेमलेस इन करप्ट वर्ल्ड, ये काफी मायने रखता है। What God desire from each one of us, हम हर एक के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है कि इस जगत में हमें पाप विरहित, या हम देखते कि दाग विरहित रहने के लिए खुदावंत अगुवाई करता है। So trust that God sees and protects those who walk in His way. तो उस प्रकार का विश्वास और भरोसा उस परमेश्वर पर रखिए, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास और भरोसा करता है, परमेश्वर
उसके संग है और परमेश्वर उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जो परिस्थिति अगर हम महाराष्ट्र की देखते हैं, जिस प्रकार कई दिनों से बहुत कुछ बातें चल रही है, कई लोग भयभीत है ना, लेकिन we don't have to get scared of anything, है ना। हमें इस जगत में जो व्यक्ति संसार को मारता है या शरीर को मारता है, उससे भय नहीं धरे, लेकिन अगर जो आत्मा अगर हमारा नष्ट होता है, उससे हमें भय रखने की जरूरत है। एक व्यक्ति ने एक पासवान से पूछा, वो कहता है why does it seems like the wicked prosper? वो कहता है कि जब मैं देखता हूं और कई बातें मैंने देखी है कि जो लोग कुकर्मी हैं, जो लोग दुष्ट हैं, वो काफी बरकत पाते हैं, ऐसा क्यों है ना। कई लोगों का इस प्रकार का सवाल होता है। उस पादरी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज द ओनली हेवन दे विल एवर नो। उनके लिए यह जगत ही उनके लिए स्वर्ग है, उनकी जिंदगी के लिए, बट फॉर द राइचस पीपल, लेकिन धर्मी लोगों के लिए दिस इज द ओनली हेल एवर वी विल एवर सी, है ना। हमारे लिए ये नरक जैसा है, क्योंकि हमारा जीवन स्वर्ग में है, क्योंकि यह जगत बनाया है, लेकिन यहाँ पे हर प्रकार अच्छी बुरी बातें होती रहती है, लेकिन जो कुकर्मी लोग हैं उनके लिए ये स्वर्ग के समान है, क्योंकि उनको स्वर्ग की आशा नहीं। दैट इज व्हाट द पास्टर से उस व्यक्ति को। कई लोगों को हमारे जीवन में सोच होता है कि जो बुरे करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, भले करते हैं वो पीछे हो जाते हैं। इसका जवाब वही है, क्योंकि इस जगत में हमारे लिए यह स्वर्ग नहीं, हमारे लिए स्वर्ग वो है ना। कि आकाश में भी स्वर्ग के लिए जाएंगे, अलग बात हो जाए। सो डोंट सीक हेवन ऑन अर्थ, है ना। ये जगत में स्वर्ग पाने के लिए प्रयास न कीजिए, हमें स्वर्ग मिला है, and God has given us, that is our destination। परमेश्वर खुदावंत इस वचन के द्वारा जो 4 बातें हमने गौर की, खुदावंत आशीष करे। पहली बात हमने गौर किया था वो थी कि परमेश्वर कहता है कि राइचसनेस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, धार्मिकता हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। अगर आज भी हम हमारे जीवन में बिखरे या मुश्किल है चलने में, तो परमेश्वर खुदावन के धार्मिकता में चले। दूसरी बात, द टंग्स रिवील द हार्ट, हमारा जो जबान है, जीव है, वो हमारे मन, हृदय और सोच को प्रकट करता है। हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द और बीच और सच्चा सोच किस प्रकार है। तीसरी बात, लेजीनेस लीड्स टू पॉवर्टी बट डिलिजेंस लीड्स टू ब्लेसिंग। तीसरी बात हमने देखी, आलस्य या आलसीपना दरिद्र लाता है, परंतु परिश्रम बरकत लाता है। आखिरी बात देखी, गॉड वॉचेस ओवर द राइचस, परमेश्वर धर्मी लोगों को उनकी रक्षा करता है। दानियल के कि हमारा वो करेगा। परिस्थिति बावजूद जो भी है, कितने लोग हमारे खिलाफ हो, लेकिन परमेश्वर के लोग हर जगह सुरक्षित है, क्योंकि हमारा यह स्वर्ग नहीं, हमारा स्वर्ग उधर है। और वी ऑल आर, हमारा डेस्टिनेशन जो कंफर्म है। आइए इस समय हम अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। खुदावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। इस जगत में 2 रास्ते इस जगत में है खुदावंत, धार्मिक और अनैतिक। हम कौन से रास्ते में जाते हैं? सोलोमन 10वें अध्याय में जिस प्रकार बहुत ही बेहतरीन से अपने पुत्र को, प्रजा को तथा आज हम हर एक को उस बात को गौर कर रहा है, जो 4 बातें हमने सीखी खुदावंत, उस पे हमें अगुवाई करने के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए हमारे हृदय के विचार हम किस प्रकार रखें, तथा परमेश्वर हमारे जीवन में हम तेरे वचन पढ़ने, तेरे प्रार्थना करने और भले कार्य करने के लिए हम तत्पर रहे, ना आलसी रहे। और चौथी बात जो हमने देखी कि धर्मी लोगों को परमेश्वर खुदावन सुरक्षा प्रदान करता है, उनके वो संग है। तेरा कलाम जिस प्रकार यशाया नबी को भी कहता है कि अगर तू पानी से चले, आग से चले, तुझे कोई हानि न होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। खुदावन यह वादा तूने आज हमारे के लिए, हमारे महाराष्ट्र, भारत देश और जगत के तमाम लोगों को ये दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। हमारे जीवन को हम तेरे चरणों में लाते हैं। 2 रास्तों में हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? तू चाहता है कि हम धार्मिक जीवन जिए,
हमारा हृदय हम तेरे चरण में लाते हैं। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से अपने मुकद्दर दस्तरख्वान पर बुलाता है, जिसके जरिए से वो अपने आप को हमें देना चाहता है और हमारी हिदायत करता है, ताकि हम मोहब्बत से रिफाकत रखें और आपस में मोहब्बत के साथ मेल मिलाप रखें। हम इस समय जिस प्रकार हम सब लोग खुदावंत के सामने पौलुस रसूल के नसीहत के मुताबिक अपने आप को जांचते हैं और जबूर के अल्फाज में इकरार और दुआ करते हैं। आइए हम मिलकर इस प्रार्थना को करते हैं। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपने रहमत के कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरे बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं मानता हूँ और मेरे गुनाह हमेशा मेरे सामने हैं। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वह काम किया है जो तेरे नजर में बुरा है। देख, तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है और बातिन में मुझे दानाई सिखाएगा। मेरे गुनाह की तरफ से तू मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असराइनों को मुस्लिम डाल। हुजूर से खारिज न कर, अपने नजात की शादमानी मुझे मेर इनायत कर और मुस्तहिद रूह से संभाल। आमीन। परमेश्वर का जो वचन जिस प्रकार है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान ले वो हलाल न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो परमेश्वर खुदावंत को हम धन्यवाद देते कि यह समय परमेश्वर ने हमें दिया है। परम पिता की हम स्तुति गाए, इसका पहला और दूसरा पद हम गाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें।
से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से, मुक्ति चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए। कोई है जो बचाता हमें। जिस रात यीशु को पकड़ाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा कि यह मेरा बदन है, जो तुम्हारे लिए मेरी यादगार के वास्ते किया करो। और इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और कहा कि यह प्याला मेरे खून में याद है, जब कभी पियो मेरी यादगार के लिए किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ऐ हमारे नचदे खुदावंद यीशु मसीह, अब तक तेरी तमजीद होती रहे, क्योंकि तू हमारे कसूरों के लिए मौत के हवाले कर दिया गया और हमें राष्ट्रबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। ऐ खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू इस रोटी पर बरकत दे जिसको हम खाने को है, और इस प्याले पर भी बरकत दे जिसको हम पीने को है। हमको इस मुबारक रोटी और प्याले की जरिए से खुदावंद मसीह में शरीक होने दे। ऐ खुदावंद, हम सबको जो इस वक्त हाजिर है एक कर दे, और उन मुकद्दसों के साथ जो कि आसमान और जमीन पर है हमको हिस्सेदार बना, हमारे बदन और रूह को पाक कर, ताकि हम तेरी हुजूर में जिंदा और मकबूल कुर्बानी ठहरे और हमेशा तेरे नाम की हम सन्ना करते रहे। हम बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से मांगते हैं, आमीन। वह बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह की खून की शिराकत नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शिराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी रोटी में शरीक होते हैं। कहा कि मेरा बदन है, तुम्हारे लिए मेरी यादगार के वास्ते क्या करो। आइए हम मिलकर इस रोटी में से खाते हैं। और इसी तरह उसने प्याला लिया और कहा कि यह प्याला मेरे खून में याद है, जब कभी पियो मेरी यादगार के लिए किया करो। आइए हम इस प्याले में से सब मिलकर पीते हैं। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि खुदावन आप 2000 वर्ष पहले हमारे लिए जगत में आए, हमारे लिए जिए और परमेश्वर सलीब पर अपनी जान दी, ताकि खुदावन इस जगत के तमाम लोगों को वो अनंतकालीन जीवन मिले। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ हम तेरे मेज में शरीक हुए हैं, उस विश्वास, उस उम्मीद के साथ, क्योंकि खुदावन आप फिर से लौटेंगे। यहाँ आपका शरीर और आपका लहू उस बात का प्रतीक है, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए, और खुदावन आपके साथ जब लौट कर आओगे हम आपके साथ सदा के लिए रहेंगे। उसी विश्वास, उसी सामर्थ्य और उसी भरोसे के साथ हर एक को परमेश्वर आपके अगुवाई, आपके सामर्थ्य में सबों को चलाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
के आसमान पे क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, यीशु में तो रखे, यीशु मेरे वतन में पहुंचूंगा इधर से। क्रूस पर खार, क्रूस पर खार, होगी मेरी नाज़, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। जो आपने हमारे जीवन में दिखाया प्रभु, इस समय आकर हम आपकी महिमा स्तुति कर सकते प्रभु। ये सब आपकी इच्छा के अनुसार है, इसलिए आज यहाँ पर हम एकत्रित हैं प्रभु। आपके उस प्यार के लिए जो आज तक आपने हमें दिया प्रभु, हम आपकी महिमा स्तुति करते हैं। विशेषकर प्रभु जब हम समस्या में रहते, संकट में रहते प्रभु, हर समय तो हमें संभालता है, हमारी मदद करते हैं प्रभु। तेरा वचन है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा प्रभु। सचमुच में तेरा वचन, तेरा बाइबल में का एक एक वचन प्रभु जो सत्य है प्रभु, इसलिए उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर तू हमें बचाता है, ठोकर खाने से तू हमें बचाता है, बीमारी से बचाता है, समस्याओं में हमारी मदद करते प्रभु। तेरी स्तुति और महिमा करते प्रभु, तेरे सुंदर वचन के लिए कि हमेशा तू हमारे साथ है प्रभु। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं यहाँ पर कि हम हर एक को तो अपने आशीष से परिपूर्ण कर प्रभु। और जो वचन हमने सुना है, जो प्रभु मानना तूने हमें दिया है प्रभु, उसे जो खा के हम लोग तृप्त हुए प्रभु। और जब यहाँ से हम जाते प्रभु, पूरे हफ्ता में उस पर मनन करें और प्रभु उसे पढ़े और उसमें से आशीष पा सके सकूँ प्रभु, क्योंकि तू हमें चलाने वाला प्रभु है। हम विशेषकर चंदे के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो कुछ तूने हमें दिया उसमें से हमने थोड़ा सा तुझे दिया है प्रभु, उसे तू मान्य कर। और प्रभु इसमें का हर एक पैसा आपकी महिमा और स्तुति के लिए उपयोग हो सके, ऐसा तो होंगे प्रभु। जो लोग नहीं दे सके प्रभु, उन्हें भी तू आशीष कर, और जिन्होंने दिया उसे भी तू आशीष दे प्रभु। पूरा आगे का समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी तमाम आशीषों के लिए फिर से एक बार तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु। आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। प्रेज द लॉर्ड। अनाउंसमेंट इस तरह से है, जो फॉर्म आप लोग को दिया गया था फैमिली इंफॉर्मेशन के बारे में, प्लीज़ सबमिट कीजिए जिन्होंने नहीं दिया है। और संडे को 27 जुलाई 2025 को हीलिंग और डिलीवरेंस की सर्विस होगी। और 27 जो हमारा फूड ड्राइव है टाटा हॉस्पिटल का, वो हम लोग नेक्स्ट वीक अनाउंस करेंगे। ये टाइम बारिश होगी तो हम लोग फ्रूट्स देंगे वार्ड में जाके, अगर बारिश हो रही है तो। और सभी को थैंक यू जो आप लोग ऑफरिंग टाइम्स दे रहे हैं। आप सभी को गॉड ब्लेस करें। और ये जो पास्टर साहब ने अभी डाला है ग्रुप में, जो एग्ज़ाम होने वाला है, सो हम अपने आप का नाम, सबके नाम कीजिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो एग्ज़ाम में। और जिन्होंने जो मुक्ति मिशन के ट्रैवल और जो भी एक्सपेंस नहीं दिए हैं, काइंडली वो पे कर दीजिए। हम तेरे हम सन्ना करते हैं, क्योंकि तू महान स्वर्गीय पिता है, आदि अंत तू अल्फा ओमेगा केवल तू है। खुदावंत संपूर्ण जून महीना संभाल कर आज ये नया महीना और इस जुलाई महीने का पहले सप्ताह में इस प्रभु दिन आपने हमें इकट्ठा किया तेरी खिदमत करने के लिए। प्रार्थना से लेकर भजन संहिता पढ़ना हो और तेरी खिदमत गीतों के द्वारा करना हो परमेश्वर, तेरे वचन पर मनन करना और आपकी इच्छा के द्वारा जो सीख हमने सीखी है खुदावन, तथा तेरे पवित्र मेज में शरीक होने का अवसर दिया, इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ विशेष और प्रार्थना करता हूँ तेरे चरणों में,
जोएल के लिए खुदावंत, और तुझसे जो भी बुखार और जो भी कमजोरी है खुदा, मैं दुआ करता हूँ अभी बेहतर है, लेकिन परमेश्वर तू उसे अपना चंगाई का हाथ का स्पर्श करे और उसे हर एक कमजोरी से दूर करके सामर्थ्य से भरे। मैं दुआ करता हूँ विशेष जोएल को तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर खुदावा, तथा मैं दुआ करता हूँ सिस्टर रेखा साठे, उनके लिए प्रभु परमेश्वर, उनको भी प्रभु परमेश्वर तूने तेरे भवन में लाया, और परमेश्वर उनको, उनके बच्चों को और उनको अब तक आपने अगुवाई की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम दुआ करते हैं उन संपूर्ण परिवार के संग तू हो। सिस्टर स्नेहा माली जो खुदावंत फिलहाल में ही पनवेल इस जगह पे वो शिफ्ट हुए और वहां से यहाँ आना, और परमेश्वर खुदावंत उनका शिफ्टिंग का हो, वहां सेटल होने का हो, तथा परमेश्वर हर एक उनके अगुवाई आपने उन्हें की। कई वर्ष पीपीटी में कार्य होने के बाद, रिटायर के बाद परमेश्वर इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन परमेश्वर आपने उन्हें अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं और उनको इस आज की इस इबादत में शरीक होने का अवसर दे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं दुआ करता हूँ सिस्टर सीमा और उनके जो कल ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, और परमेश्वर खुदावन उनका 2 सप्ताह पहले जो ऑपरेशन हुआ वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट और दवाई जो खुदा डॉक्टर के द्वारा दी गई, लेकिन परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका स्पर्श और आपकी रहमत उनके संग थी, उनके तुसातों, और परमेश्वर हर एक प्रकार की कमजोरी को दूर करके सामर्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य दे। मैं इस समय याद करता हूँ सिस्टर सीमा लकड़ा जो 3 दिन से निमोनिया से त्रस्त है, और परमेश्वर खुदावन अब उनकी तबीयत बेहतर है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और खुदा मैं दुआ करता हूँ कि हर एक इस जो भी डॉक्टर उन्हें दवाई या ट्रीटमेंट दे रहे, उन्हें भी तू ज्ञान बुद्धि दे। भाई विनोद थोरात को भी हम याद करते हैं, परमेश्वर आज सुबह से उन्हें जो भी तकलीफ हो रही है और जो भी अस्पताल में वो बदलापुर इस जगह गए, मैं दुआ करता हूँ कि उनके तू संग हो और परमेश्वर उन्हें अगुवाई कर। उनको उन्होंने जो उनका ट्रांसफर हुआ है दूसरे डिपार्टमेंट में, उसके बाद के लिए भी शुक्रगुजारी के उनको खुदा बाप जो काम वो करते हैं, दुआ करता हूँ इस संपूर्ण महीने के लिए और इस महीने के हर एक हमारे कलीसिया के कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर खुदावन जो कलीसिया के द्वारा हमने तय किए हुए कार्यक्रम है, सेवा कार्य है, उनको परिपूर्ण करने के लिए आप हमें अगुवाई करें, और जो भी अनुदान या जो भी टाइथ ऑफरिंग्स या जो तमाम बातें सहकार्य कलीसिया और मित्र परिवार के द्वारा इस सेवा कार्य को मिल रहा है, परमेश्वर इसका उपयोग उस बात के लिए हो, यही प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं। संपूर्ण महीना आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा काम, हमारा आना जाना आपके छत्र छाया और अगुवाई में करें। हमारी कलीसिया के सभी लोगों को जो आज उपस्थित है और जो न आ सके, कई उनके वैयक्तिक और पारिवारिक या अन्य कारणों से, खुदा बाप उनके संग हो, उनको हृदय मन और दे, उनके तमाम दिक्कतों को और तू दूर करके उनको बरकत और तेरी अगुवाई करे। हमारी कलीसिया के सभी लोगों को आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीष से भर यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। जो आसमान पर भाइयों, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा के और उसके बेटे हमारे खुदावंत यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप और बेटे और उनको जिसकी बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और अब तक तुम्हारे साथ बनी रहे। आमीन। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोई लाई दुआ
परमेश्वर की शांति और उसकी उपस्थिति आप सबके साथ रहे। आमीन।